everyone, in this video we are going to let us discuss questions of first poem of Purvi book, and the name of the poem is Raven and the Fox. Fill in the blanks by choosing the correct option. Correct option से blanks को fill करना है. So Mr. Raven is a bird. Bird थे. The name of the fox is Raven or Reynard? Reynard. Mr. Raven had piece of food or bunch of leaves. क्या था मुंह में? Piece of food. The fox calls the raven a foolish bird or good looking bird. Yes, he called him good looking bird at first. The fox asked the raven to sing. गाने के लिए बोला था. The raven and the fox live in the woods. The raven forgot that he croaked. भूल ही गया कि वो कर्कश आवाज है उसकी. The raven opened its beak to sing. गाने के लिए मुंह खोल दिया. The food fell down. The fox laughed at the raven. It is not wise to be too proud of oneself, and the raven learned a lesson. So in this way, this question is completed. Now next, he says, read the poem again and match the words in column A with their meaning in column B. Check your answers. So perched means to look for. Perch means sat on a branch. Then morsel is a small piece of food. Then seek means to look for something. Then pride is feeling that you are better than others. Eyed means to look with interest at something. Then limb is a branch of a tree, and woods a smaller area of forest with similar kind of trees. So in this way they are matched, and then let us think and reflect. Look at the pictures and number them in the order that they happen in the poem. Poem में सबसे पहले क्या हुआ होगा? यहाँ तो food मिस्टर रेवन के माउथ में है. यहाँ पर yes, सबसे पहले मिस्टर रेवन को food मिला होगा. Then he took the food to the tree and perched there. Then he started having the food, and Mr. Reynard was looking at him. And then fourth one, Mr. Reynard took the piece of food and ran away. Now read the following lines and answer the questions that follow. Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king. Such feathers refer to. अब कैसे feathers को refer कर रहा है? Such feathers, that is shiny and beautiful feathers. Why would the birds of the woods call Raven the king? क्यों उसे king कहेंगे? Because the birds of the woods would call Raven the king if he sang. अगर वो गाएगा तो पक्षी उसको राजा कहेंगे. ऐसा कौन कह रहा था? मिस्टर रेनार्ड. यानी कि फॉक्स चालाकी करके कह रहा था कि तुम गाओगे तो सब लोग तुम्हें राजा कहेंगे. Why does the fox address the raven as sir? फॉक्स ने रेवन को सर क्यों कहा? इतनी इज्जत क्यों दे रहा था? The fox addressed the raven as sir out of flattery. उसकी चापलूसी कर रहा था. उससे उसका piece of food, उसका morsel जो लेना था. The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride. Why did the raven open his beak? Raven ने beak क्यों खोली? क्यों खोली थी भाई? क्योंकि उसे लगा सच्ची में जंगल के लोग उसे राजा कहेंगे अगर वो गाना गाएगा तो. Raven opened his beak to sing as the fox flattered him. उसकी
फ्लैटरी से, फॉल्स प्रेज से इम्प्रेस होके वो गाने के लिए चोंच खोल बैठा। कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स। फॉक्स क्लेवर, फॉक्स क्लेवर था तो रेवन, रेवन क्या था? फूलिश। Why does the raven forget that his voice is just a croak? क्यों भूल गया था रेवन कि वो कर्कश आवाज में बोलता है? When the fox flattered the raven by falsely calling him handsome, the raven felt proud of himself and forgot that his voice was just a croak. जब फॉक्स ने फ्लैटरी की, फॉल्स प्रेज की रेवन की और उसे हैंडसम बर्ड कहा, तो रेवन को अपने आप पे घमंड हो गया। उसे लगा अच्छा मैं वास्तव में बहुत हैंडसम हूं, भाई हूं मैं हैंडसम, एंड फॉरगॉट, और इस प्राइड में वो बुद्धू भूल गया कि उसकी आवाज तो बड़ी कर्कश है। हाउ डज रेनर्ड मेक द रेवन सिंग? रेनर्ड रेवन को गाने को मजबूर कैसे करता है? रेनर्ड कैसे मजबूर किया था? रेनर्ड फ्लैटर्ड द रेवन फॉर हिज शाइनी विंग्स, उसके शाइनी विंग्स की तारीफ की, झूठी तारीफ की। ही सेड दैट द बर्ड्स वुड कॉल हिम किंग इफ ही सैंग, और उसने ये भी कहा कि अगर तुम गाओगे ना तो सब लोग तुम्हें राजा बोलेंगे। अब राजा बनने की तो सबकी इच्छा होती है, तो बेचारे रेवन में भी जाग गई वो इच्छा। द फूलिश रेवन बिलीव्ड हिम, और वो बुद्धू उसकी बात को मान गया। एंड ओपन हिज माउथ टू सिंग, और गाने के लिए उसने अपना मुंह खोल दिया। Why does Reynard say that pride is not wise? रेनर्ड क्यों कहता है कि प्राइड अच्छा नहीं है? रेनर्ड praises the raven by calling him handsome. रेनर्ड तारीफ करता है रेवन की, उसे हैंडसम कह के। Flattered by the false praise, the raven opens his mouth to sing. उस false praise से फ्लैटर होकर रेवन ने अपना मुंह खोला गाने के लिए। He even forgets that he was holding a morsel in his mouth. ये भी भूल गया कि उसके मुंह में तो एक piece of food है। Cunning Reynard, who wanted the morsel, वो चालाक लोमड़ी, वो फॉक्स जो उस पीस को लेना चाहती थी, befools the raven, उसने उसे बेवकूफ बनाया, and then reminds him that pride is not wise. और फिर उसे रिमाइंड करवाता है, फिर उसे याद दिलाया कि प्राइड करना, घमंड करना अच्छा नहीं होता। बताओ, ऐसे ऐसे गुरु मिलते हैं। Give one reason why the teaching is quite a surprise. अब ये टीचिंग सरप्राइज क्यों थी? एक कारण बताना है। The raven believed Reynard's words that the birds would call him king if he sang. अब रेनर ने पूरा यकीन कर लिया इस बात पे कि अगर वो गाएगा तो जंगल के लोग उसे राजा कहेंगे। As soon as he opened his mouth to sing, the morsel in his mouth fell. जैसे ही उसने मुंह खोला तो मुंह में से फूड गिर गया। रेनर्ड मेड फन ऑफ हिम, रेनर्ड ने उसका मजाक उड़ाया। एंड सैड दैट प्राइड इज अनवाइज, और ये कहा कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है। This teaching surely came as a surprise to the foolish raven who was feeling pride. और ये टीचिंग उसके लिए, उस बुद्धू रेवन के लिए एक सरप्राइज थी, क्योंकि वो तो पक्का मान रहा था कि मैं इतना हैंडसम हूं और मुझे लोग राजा कहेंगे। तो उसके लिए जो घमंड हो गया था, उसके लिए टीचिंग वास्तव में एक सरप्राइज थी। इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट? अब आपकी कोई बहुत ज्यादा तारीफ करे तो कैसे रिएक्ट करोगे आप? इफ समवन प्रेजेस मी टू मच, तो क्या होगा? जब बहुत ज्यादा तारीफ करे आपकी तो क्या करोगे? आई वुड थैंक हिम फॉर हिज जेनरोसिटी, तो मैं तो भाई उसकी जेनरोसिटी के लिए, वो मुझे इस लायक समझता है कि वो मेरी तारीफ कर रहा है, पहले तो थैंक्स कहूँ। हाउएवर, लेकिन आई विल नॉट बिलीव हिम फुलिशली, यूं ही विश्वास नहीं कर लूंगी। उसको थैंक्स तो कह दूंगी, लेकिन मैं सोचूंगी। आई विल श्योरली रिफ्लेक्ट ऑन द ट्रुथ इन हिज प्रेज, लेकिन सोचूंगी जरूर ये जो तारीफ कर रहा था ये सच्ची थी कि ये कुछ काम निकलवाना चाह रहा है। तो सोचना जरूर चाहिए, बिना सोचे समझे कोई एक्शन नहीं करना चाहिए। Now let us learn part. Write the rhyming words from the poem one has been done for you. Rhyming words लिखने हमें, जैसे फर्स्ट स्टैंजा में लिम और हिम,
तो लिन हिम से राइम करता है और पीक सीक से राइम करता है फर्स्ट स्टैंजा में. इन सेकेंड स्टैंजा वर्ड बर्ड राइम करता है, सिंग किंग राइम करता है. इन थर्ड स्टैंजा जोक क्रोक प्राइड आइड. इन फोर्थ स्टैंजा नो मैचेस विद ग्लो, unwise matches with surprise. Study the underlined words in the poem. For the raven held in his great beak, the word big and beak begin with the same b sound. The song of sweet bird, s sound repeat हो रहा है. तो ये क्या है? Alliteration is the repetition of consonant sounds at the beginning of words. किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में अगर कोई साउंड रिपीट हो रहा है तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं. टू और मोर वर्ड्स टुगेदर, एक साथ या आसपास एक दो या दो से ज्यादा वर्ड्स की बिगिनिंग का साउंड अगर रिपीट हो रहा है तो हम उसे एलिट्रेशन कहते हैं. अब जैसे यहाँ पर बिग बीक में ब साउंड रिपीट हुआ है और सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड में स साउंड रिपीट हुआ है. नाउ पिक अनदर एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम स्टैंजा 2. स्टैंजा 2 से एलिट्रेशन का एक और एग्जांपल बताना है. तो क्या एग्जांपल है? एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम स्टैंजा 2 इज वुड वुड्स वुड. वुड्स वुड जो वर्ड है वो वहां पर एक एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का. Choose the correct opposite from the box given below and complete the table. There are 2 extra words that you will not need. अब हमें अगेन बॉक्स दिया है और उस बॉक्स में से हमें ऑपोजिट वर्ड्स फाइंड करके लिखने हैं. तो फर्स्ट वर्ड इज वाइज मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, ज्ञानी. हैप्पी खुश, ह्यूमिलिटी विनम्रता, फ्लू उड़ गया, रिमेंबर्ड याद रहा, नोटिस ध्यान देना, डिम कम रोशनी, क्राइड चिल्लाना, सिली बुद्धू. फर्स्ट वर्ड है पर्च्ड. पर्च्ड मतलब बैठना, टिक कर बैठना. तो उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? दैट मे बी फ्लू. सेकेंड वर्ड फॉरगॉट. फॉरगॉट मतलब भूल जाना, उसका ऑपोजिट क्या होगा? रिमेंबर्ड. थर्ड वर्ड इज फूलिश और फूलिश मतलब बुद्धू और बुद्धू का ऑपोजिट क्या होगा? वाइज. फोर्थ वर्ड इज प्राइड और प्राइड मतलब घमंड और घमंड का ऑपोजिट होगा ह्यूमिलिटी. देन लाफ्ड हंसा और लाफ्ड का ऑपोजिट क्राइड. क्राइड का मतलब रोना भी होता है, तो यहां पर क्राइड. इग्नोर मतलब ध्यान ना देना और नोटिस ध्यान देना. ग्लो शाइन करना, चमकना और डिम धुंधला होना. Use any 4 words from the table given above to make sentences of your own.